we are ready to hear the voice of God. We are ready to listen the voice of God. Thank you so much, Jaslyn and the EIG family. It is it's an honor for me to always be here. And I apologize sometimes that I cannot make it. Sometimes it's technology, other times it's personal stuff. But as it is, God is always good. Amen. Amen. So what I want to do today is talk to you about a portion of scripture that I've preached before. I just want to bring it from another angle today, as I got this word very late from God this afternoon. आज मैं जिस बात पे प्रीच करूंगा, मनादी करूंगा, ये वो विषय है जो मैंने पहले मनादी की इस विषय पे, लेकिन आज जो इस दोपहर में खुदा ने मुझे इसी विषय को इसी हवाले से एक डिफरेंट एंगल से कुछ सिखाया, जो मैं आपके साथ मनादी करने वाला हूँ जिसकी. Okay, so if you have your Bibles, please turn with me to the very famous portion of scripture in Ezekiel chapter number 37. अगर आपके पास कलामी मुकद्दस है तो आप कलामी मुकद्दस को मेरे साथ खोलिए. हिस्कियल का सहीफा उसका 37 चैप्टर 37 बाब. हिस्कियल का सहीफा उसका 37वां बाब. So we'll be reading the first 10 verses. I'll be read first and then it can be translated in your language. इसकी हम पहली 10 आयत को पढ़ेंगे. पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में हम देखेंगे. So I'll be reading from the New King James Version. From this one, it says the following. Verse number 1, the hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. Then he caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in the open valley, and indeed they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? So I answer, O Lord God, you know. Again he said to me, prophesy to these bones, and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. Verse 7, so I prophesied as I was commanded. And as I prophesied, there was a noise and suddenly a rattle, and the bones came together, bone to bone. Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them over, but there was no breath in them. Also he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath, thus saith the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe on these slain, that they may live. Verse 10, so I prophesied as he commanded me, and breath came into them, and they lived and stood upon their feet, an exceedingly great army. Until so far. Amen. खुदा के कलाम में से सुन रहे हैं हिस्कियल का सहीफा उसका 37 चैप्टर उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक. खुदा के कलाम में यूं लिखे, खुदा का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पूर्ण थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आस पास चौगिर्द फहराया और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी. और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ऐ खुदा तू ही जानता है. फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो. खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ. बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख सलसला आया और हड्डियां आपस में मिल गई, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से. और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई
पर उनमें दम ना था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर। तो हवा से नबूवत कर कि ए आदमजाद, और हवा से कह, खुदा यूं फरमाता है कि ए दम तू चारों तरफ से आ, इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। खुदाम के कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदाम की बड़ी बरकत हो। खुदाम का शुक्र, आमीन। Amen. Now, first of all, we see here that God brought Ezekiel to a very strange place. It's called a valley. सबसे पहले हम यहाँ पे एक बात देखते हैं कि खुदाम हिस्कियल को एक बड़ी हैरान सी जगह पे लेके आया, जिसका नाम कह रहे वो क्या है, वो वादी है। वहां पे लेके आया, जो वादी हम जानते हैं पहाड़ों के दरम्यान में जो जगह होती है, जो गहरी नीचे होती है, निचली जगह पे खुदा उसको लेके आया। So we saw that we see further that this valley was full and covered with bones. और वो हैरान जगह क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि वो जो वादी थी, वो पूरी वादी के अंदर सिर्फ हड्डियां थी, और बड़ी सूखी हुई हड्डियां, पूरी की पूरी वादी भरी हुई थी हड्डियों के साथ। So that means that there was a great war that happened there before. Many death, many destruction took place at that valley. इसका मतलब है कि बहुत अरसा पहले कहीं कभी इस वादी के अंदर कोई जंग हुई थी, कोई ऐसी कोई मतलब डिस्ट्रक्शन हुई थी, बर्बादी तबाही हुई थी, क्योंकि वो जो सूखी हड्डियां देर से पड़ी हैं, वो बता रही हैं कि वहां पे कुछ हुआ था, बर्बादी तबाही जंग हुई थी। And it's interesting to note that God took Ezekiel to this valley. He didn't find himself there. God took him there. दिलचस्प बात यह है कि खुदा हिस्कियल को उस वादी के अंदर लेके गया। हिस्कियल खुद नहीं गया, खुदा लेके गया उस वादी के अंदर हिस्कियल को। Today, I believe that you and I has also been taken to a valley. अब मैं आज यकीन करता हूँ, मेरा मान है कि मैं और आप भी इसी तरह वादी के अंदर लेके जा चुके हैं। हम वादी के अंदर खुदा हमें लेके गया है। And let me call it the valley of COVID-19. और मैं उसको कोविड-19 की वादी कहूंगा। We all are part around the world of a lot of death and destruction and many bad things happening. Family members died, friends and all. पूरी दुनिया में जो भी ये मुसीबत, बर्बादी, तबाही कोविड की वजह से आई, हम अपने इर्द गिर्द मौत को, बीमारियों को, लोगों को सफर करते सब कुछ देख रहे हैं, और ये जो सब हम उनके दरमियान में है, ये बिल्कुल ऐसे ही सीन ले लें जैसे अभी हम हिस्कियल को देख रहे हैं। वादी के अंदर लोगों ने अपने प्यारों को खोया है, बहुत सारों ने। And many times we pray and we ask God, please, can you do something? Can you stop COVID-19? Can you get rid of it? हम दुआ कर रहे हैं खुदा से, हम दुआ बोझ के साथ करते हैं मन से, खुदा मेहरबानी करके आप इस गंदी वबा को खत्म कर दे। खुदा बाप आप इस मौत बीमारी को खत्म करें। खुदा बाप आप लोगों पे रहम करें, उनको छुड़ाएं। हम रोज ऐसे बहुत बोझ के साथ इस चीज के लिए दुआ भी कर रहे हैं। Many pastors, many churches, many Christian organizations all praying against and begging God, asking God for COVID-19 बहुत सारे पास्टर, बहुत सारी कलीसियाएं, बहुत सारे चर्चेस जो हैं खुदा से इल्तमास कर रहे हैं कि ये कोविड-19 जो खत्म हो जाए, ये जो बीमारी है, वबा है, ये पूरी दुनिया से खत्म हो जाए। Now we see that God gave Ezekiel a divine appointment that was not attractive and not promising. अब देखें, हिस्कियल को खुदा ने एक ऐसी डिवाइन, यानी कि एक ऐसी इलाही किस्म की अपॉइंटमेंट, यानी अपॉइंट किया, या उस चीज के उसको मखसूस किया है कि जो कोई किसी को बरकत देने के लिए नहीं है या कुछ ऐसी नहीं, बल्कि एक डिफरेंट किस्म की ये चीज है, हम देख रहे हैं वहां पे। You see, many times God's calling is not what we expect. बहुत दफा खुदा हमें बुलाता है, हमें आवाज आती है खुदा की, ऐसा नहीं जैसा हम चाहते हैं, हमारी तौक़्क़ात के मुताबिक नहीं, बल्कि जो जैसे खुदा की अपनी प्लान होता है उसके मुताबिक। I wondered what Ezekiel must have felt. Why God bring me to this place?
इस चीज के ऊपर मैं हैरान हूं कि उस वक्त जब हिस्कियल के साथ ये सब कुछ हो रहा था, खुदा ने उसको बुलाया, कहा, दिखाया, उस वक्त ये सब कुछ हिस्कियल की क्या फीलिंग्स थी, वो क्या महसूस कर रहा था। And valley also stands for destruction and death down in the valley and all that. It is something that is not good. And God took Ezekiel there. और देखिए, ऐसी जगह जो कि अच्छी नहीं है, ऐसी जगह पहले तो वो बहुत गहराई की जगह नीचे करके, मैं पहले आपको बता चुकी, जो वादी होती है वो नीची जगह होती है, वो एक तो वो निचली जगह, ऊपर से फिर वो सूखी हड्डियां, जो बहुत देर की सूखी हड्डियां उससे भरी पड़ी है वो। In November and December of 2019, the COVID virus hit the nation of China in Wuhan. हम जानते हैं कि नवंबर दिसंबर 2019 के अंदर जो वुहान, जो चाइना के जो शहर है, उसको कोविड-19 ने हिट किया। And then it spread from there all over the world. और Every वहां से country फिर has पूरी दुनिया में COVID-19. वो बर्बादी फैल गई, ये वबा पूरी दुनिया में फैल गई। And it is associated with a lot of depression. People feel down. People must stay at home. Their lives are all changed and all scattered. और ये सिर्फ खाली वबा बीमारी तक की नहीं बात रही, बल्कि ये क्या हुआ, जब ये पूरी दुनिया में फैल गई तो लोगों के अंदर, घर के अंदर आइसोलेट हो गए, खाने पीने की चीजों के अंदर कमी आ गई, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आ गई, नौकरियां गई, बिजनेस गए, बहुत सारी चीजें हुई, हम देखते हैं। और उसकी वजह से लोगों के अंदर डिप्रेशन आ गया, लोग बड़े डाउन, ज़हनी तौर पे ज़हनी बीमारियां बढ़ने शुरू हो गई। We are children of the Most High God, right? That means that our life is in the hands of God. हम खुदा के, हम ऑल माइटी गॉड, कादिर मुतलक खुदा के बच्चे बच्चियां हैं। इसका मतलब है कि हम सब की जिंदगी जो है उसके हाथ में है। Is that true? Is your life in the hands of God? Yes or no? क्या ये सच है? क्या आपको पता है कि आप इस चीज पे यकीन रखते हैं कि आपकी जिंदगी खुदा के हाथ में है? सबकी जिंदगी, यस, आमेन। Even we're all in this COVID situation. Is God's hand still on you? Yes or no? इवन के यहाँ तक कि ये सारी जो सिचुएशन थी, ये सारी जो वबा फैली कोविड की, इस सारी वबा के अंदर, सारे हालात के अंदर, क्या आपकी जान खुदा के हाथ में थी कि नहीं? यस, ऑफ कोर्स। Or no. This is not God's hand. Sorry, Pastor. This is the hand of the devil. This cannot be God. नहीं, पादर साहब, ये ऐसा नहीं, ये तो खुदा का हाथ नहीं, ये तो शैतान का हाथ था। You see, we as children of God, once we in a crisis situation, the crisis situation will reveal your heart. याद रखें, हम जो खुदा के बच्चे बच्ची हैं, खुदा के जो ईमानदारों की बात हो रही है, हम जब किसी क्राइसिस में होते हैं या किसी ऐसे हालात में होते हैं जो बड़े टेंशन वाले हालात, या ऐसे हालात जो बड़े माहवारी बर्बादी वाले हालात होते हैं, तो उसके अंदर हमें पता चलता है एक्चुअली कि हमारा अंदर का एक्चुअली एटीट्यूड क्या है, हम हैं क्या अंदर से, रूहानी तौर पे हमारी रूहानी हालत का पता तब चलता है। You see, my question tonight is, or well, it's tonight by me. For some of you, it's morning. But my question is, what is your attitude in this COVID-19 situation? अब मेरा सवाल आपसे और हम सब से, मेरे से, अपने से भी है कि ये जो बहरान, ये जो मुसीबत, क्राइसिस आए, इनके दरमियान में मेरा और आपका एटीट्यूड, रवैया कैसा था? Why is the doors of the church all being closed for a certain time? सारे गिरजा घरों के दरवाजे क्यों सर्टेन टाइम के लिए बंद हो गए, एक खास वक्त के लिए बंद कर दिए गए? I want you to think about something quickly. मैं चाहता हूं कि आप इस चीज के ऊपर गौर करें, इसको सोचें कुछ देर के लिए। God brought Ezekiel into a very depression situation. खुदा हिस्केल को एक ऐसी सिचुएशन के अंदर लेके गए जो बड़ी डिप्रेसिव, बड़ी ज़हनी तौर पे, मतलब बहुत ही नीचे उसको कर रही थी मेंटली। All that Ezekiel saw was many bones scattered all around in that valley.
क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो जो डिप्रेशन वाली सिचुएशन उसको इसलिए कह रहे हैं हम कि वहां पे हम देख रहे हैं कि सारी जो वादी थी सूखी हड्डियों से, जो बड़ी देर की सूखी हड्डियां उनसे भरी पड़ी हुई थी। Now, my question is, does these bones have ambition? अब मेरा आपसे सवाल ये है, क्या ये जो हड्डियां थी इनके अंदर कोई डिजायर या कोई एम्बिशन या कुछ करने का जज्बा था? Does these bones have a future? क्या इन हड्डियों का कोई मुस्तकबिल था? Try to discover the purpose of these bones. Do they have a purpose? क्या इन हड्डियों के अंदर कोई इनका मकसद रहने का, उन हड्डियों का, या कोई हमारा, हम सब जिंदा इंसान है, हमारे अंदर हमारा एक पर्पस होता है रहने का, हमारा अगले दिन उठने का, हम एक पर्पस के थ्रू चलते हैं, मकसद होता है। क्या इनका कोई मकसद था? You see, bones only have a past. They don't have a future. क्योंकि वो हड्डियां जो सूखी होती हैं, जो सूख जाती हैं, उनका सिर्फ पास्ट होता है, उनका गुजरा हुआ कल होता है, लेकिन उनका ना आज होता है और ना आने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी सूख चुकी हैं। There's no emotion, there's no heart, there's no driving force in a pile of bones, there's nothing. क्योंकि वो हड्डियां जो सूखी हुई हैं, उनके अंदर ना तो उनका दिल है, ना जज्बात है, ना ख्वाहिश है, ना मकसद है, कुछ भी नहीं है। Bones have no awareness. क्योंकि जो सूख गई हैं हड्डियां, उनके अंदर तो उनको ये भी पता नहीं, अवेयरनेस भी नहीं है, शुद्ध बुद्ध भी नहीं है कि वो कहाँ है, क्या हो रहा है। Ezekiel must have thought, God wants me to preach. How can I preach in such condition, in such bad situation? God, what? अब हिस्कियल ने जरूर सोचा होगा कि खुदा मुझे चाहता है कि मैं मनादी करूं, और अब वो सोचता है कि खुदा कैसे करूं मनादी, ये हड्डियां सूखी और इनको मैं कैसे मनादी कर सकता, कौन सुनेगा, ये तो हड्डियां ऐसी जिनका कोई कुछ है ही नहीं इसके अंदर। I wonder what Ezekiel must have thought. और मैं What must हैरान he इस say बात to these से bones? मैं हैरान इस बात से हो रहा हूँ कि उस वक्त हिस्कियल क्या सोच रहा है, हिस्कियल की क्या कंडीशन हुई होगी जब वो सूखी हड्डियों को देखता होगा और खुदा कह रहा है इनसे बोल, और उस वक्त उसकी क्या फीलिंग, क्या वो महसूस कर रहा होगा। You see, when we are in a valley, our natural instinct is to complain. याद रखें, जब हम वो वैली यानी कि वो निचली जगह पे होते हैं, जहां हम रूहानी तौर पे बहुत नीचे होते हैं, जहां पे बहुत चीजें डिजायरेबल नहीं होती, तो हम इस तरह से होते हैं कि हम उस वक्त ज्यादा एक्चुअली कंप्लेन कर रहे थे, उसमें से कीड़े निकाल रहे थे, या कुछ ना कुछ हम कोई बात ऐसी नेगेटिव ही बातें निकल रही होती हैं। We sometimes are very negative when we are in a crisis situation. क्योंकि जब वो क्राइसिस वाले, बुहरान वाली सिचुएशन आती है, जब हमारी तवक्को के मुताबिक हालात नहीं होते, और आपको पता हम हमेशा यह कहते हैं जब परिस्थितियां हमारी मर्जी के मुताबिक ना हो या कुछ डिफरेंट हो जाए, तो हम 2 दफा एक बात बोलते हैं। और यहाँ पे देखे ये ऐसी जब सिचुएशन है, तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ये खुदा का रूह या फजल दे हम कर सकते हैं, नहीं तो क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ बुड़बुड़ाते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते हैं। We are searching the internet for answers. क्योंकि जो भी चीजें हो रही होती हैं उस हिसाब से, उस बहरान क्राइसिस के अंदर हम उसका कुछ ना कुछ आंसर ढूंढ रहे थे, उसकी वजूहात ढूंढ रहे थे, ये क्यों है, कैसे है। We are looking and listening to all kinds of conspiracy theories on this COVID-19 situation. और अभी जो कोविड के अंदर हम देख रहे हैं, बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज देख रहे हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों के ख्यालात हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के इसके बारे में अपने अपने वो दे रहे हैं कि शायद ये है, शायद इसमें बहुत सारी हम ऐसी चीजें जो मुतनाज़ ना हो, जो एक ख्याल ना हो, एक चीज ना हो, बल्कि वो फर्क किस्म के लोग की बातें करें, और हम ये सुन रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस भी बना के आ रही है, चर्चिस में पादरी भी बोलते हैं, तो बहुत कुछ आ रहा है कि फर्क अपनी अपनी जो भी सोच रहा है वो उसी हिसाब से बोलता जा रहा है। Now, Ezekiel knew, because he knew God. So he knew that something great is about to happen, but he didn't know how, what, when. अब हिस्कियल को पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन अब उसको ये नहीं पता था कि कैसे होएगा और वो क्यों कर ऐसा ये हो, उसके मतलब उसको ये तो पता, हम सभी जानते हैं कि ये तो पता है कि खुदा लेके गया है तो यकीनन कुछ ना कुछ खुदा के पीछे रजा है, खुदा की मर्जी है, लेकिन अब उसको ये नहीं था पता कि कैसे होएगा वो बड़ा काम। So God asked one question to Ezekiel. The first one, he says,
in verse number 3. And he said to me, Son of man, can these bones live? So I answer, O Lord God, you know. अब हिस्कियल से खुदा ने एक सवाल पहले हिस्कियल ही से पूछा, वो सब कुछ दिखा के कि उसने खुदा ने उससे कहा, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? हिस्कियल ने क्या किया? मैंने जवाब दिया। हिस्कियल कहता है, आए खुदा तू ही जानता है। You see, if God asks you the question today, is there life in this COVID situation? What will your answer be? अब खुदा आपसे एक सवाल अगर पूछे कि क्या इस कोविड-19 के अंदर ये जो बीमारी वबा फैली, क्या इसके अंदर जिंदगी है, तो आपका क्या जवाब होएगा? Maybe we can answer, maybe we will answer God, oh God, you know, this person say that doctor say this, that doctor say this politician say this guy say this, that guy say this and this and this say that. और शायद हम खुदा को ये नहीं कि खुदा तू ही जानता, बल्कि हम ये कहेंगे, हाँ फलाने डॉक्टर ने ऐसा कहा, फलाने पॉलिटिशियन, फलाने सियासतदान ने ऐसा कहा, फलानी गवर्नमेंट ऐसा कह रही है, उनकी रिसर्च ऐसा कह रही है, यहाँ से ये खबर आ रही है, उन्होंने ये खबर दी है। शायद हम ये बातें करना शुरू हो जाएंगे। But Ezekiel know God. लेकिन हिस्कियल के अंदर एक बात है कि वो खुदा को जानता है। And he answered God, God, you know. और हिस्कियल ने खुदा को कहा, खुदा आप जानते हो। Listen to me carefully about the message tonight. God is saying, I am still in control. इस वक्त ध्यान से सुनिए मेरी बात को। खुदा कह रहे हैं कि खुदा जो है हर चीज के ऊपर कादर मुतलिक है, और वो कल आज अब तक ये सब कादर मुतलिक खुदा है। Amen. Amen. You see, we go on as Christians because I see Facebook Live, I see all these things post and whatever, and it seems to me that the Christians are the ones that don't know what is happening. They bring so much falseness and negativeness. पे, मीडिया पे और इन चीजों पे जाके देख रहा हूँ, और जो ईमानदार लोग हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं, वो भी अपने जो फेसबुक पे और मीडिया पे ऐसी चीजें दे रहे हैं, और ऐसी चीजों के उनको खुद को ही पता नहीं, ईमानदार होने के बावजूद, कि वो उन्होंने कहाँ स्टैंड करना है या क्या, उनको वो खुद भी घबराए हुए और खुद भी ऐसे जैसे खोए हुए हैं। You see, we don't know what's going to happen tomorrow. We don't know what's going to happen next week. We don't know what's going to happen next year. But God knows. देखिए, हमें कुछ नहीं पता कि कल क्या होगा, परसों आने वाले साल में क्या होगा, लेकिन हमें ये पता है खुदा को सब पता है, खुदा सब जानता है। God knows what's going to happen in your life tomorrow. खुदा जानता है, वो वाकिफ है कि आपकी जिंदगी में कल क्या होएगा। Do you believe that? क्या आप इस पे यकीन रखते हैं? Of course, yes, amen. Then why is some of our hearts so full of fear? लेकिन अगर ऐसी बात है, हम यकीन रखते, तो आज सोचे कि हम क्यों कुछ दिलों के अंदर इतना खौफ और डर है इस चीज को लेके। We as Christians run around like a chicken without head. Just running, just going here, going there, going everywhere. कुछ मसीही जो है वो ऐसे भाग रहे थे जैसे एक मुर्गा जो है बगैर सर के भागता है, जिसको पता नहीं कि किधर को जाना। We don't bring the good news. हम खुशखबरी की मनादी नहीं कर रहे, हम खुशखबरी का पैगाम नहीं लेके आ रहे। We bring the news from doctors and politicians and conspiracy theories. That's what we bring. Yes. कौन सी मनादी लेके आ रहे हैं, कौन सी बातें लेके आ रहे हैं, जो पॉलिटिशियन, जो सियासतदान कह रहे हैं, या जो डॉक्टर कह रहे हैं, जो साइंसदान कह रहे हैं, जो ये चीजें आ रही है, उनकी बल्कि मनादी कर रहे हैं, उनको लेके आ रहे हैं, ना कि हम खुदा के कलाम की मनादी, खुशखबरी का पैगाम लेके आ रहे हैं। You know, can I say something? You know, that there's a big question and a big fight on the vaccine. Must I take the vaccine or should I not take the vaccine? And this comes from Christians. मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये बात है कि एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी एक तरह की जंग भी है इस बात को लेके, ये जो वैक्सीन है उसको लेके, कि क्या मुझे ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और ये और किसी के बात में कर रहा है, ये मसीहों की मैं बात कर रहा हूँ। Some Christian teachers, pastors, and they say, oh brother, the vaccine is the mark of the beast.
और बहुत सारे जो मसीही ईमानदार हैं वो इस चीज की मनादी कर रहे हैं, इस चीज के लिए बोल रहे हैं, बता रहे हैं दूसरों के कि ये जो वैक्सीन है ये तो हैवान का निशान है, जो हम 666 कहते हैं, 666, ये तो वो निशान, हैवान का निशान है। If you know the Bible, you will know that this vaccine cannot be the mark of the Antichrist or the mark of the beast. It cannot be. अगर आप कलाम से वाकिफ हैं, अगर आपको कलाम की आगाही है, तो आप इस चीज को समझते हैं कि ये जो वैक्सीन है ये हैवान की छाप नहीं है, ये 666 की छाप नहीं है। Ezekiel saying, "Oh Lord God, you know all, you know everything." हिस्कियल ने क्या कहा? आए खुदा तू ही जानता है। वो कहते तू ही जानता है सब कुछ। Even the situation is dark, even the situation is no good, even many stories, but God, you know. बेशक हालात जो है, वो सिचुएशन जो है वो डार्क है, बेशक कैसी भी है, बेशक ये मौत बीमारी किस हद तक है, लेकिन खुदा आप जानते हैं। You know God. खुदा आप जानते हैं। Listen to me, everybody. Listen to me carefully. सब लोग मुझे ध्यान से सुनिए। Say to God now, God, you know. आप सब खुदा से कहें, खुदा आप जानते हैं। Come say it to him. Everybody say it. God, you know. आप सब बोले अपने आप को, खुदा आप जानते हैं। You know everything. खुदा आप सब कुछ जानते हैं। Even I'm in the valley, but you are with me there. इवन बेशक हत्ता कि मैं उस गहरी खाई के अंदर हूँ, उस वादी के अंदर हूँ, लेकिन आप वहां पे मौजूद हैं। So what must you and I do in this COVID situation? What must we do? और हमें क्या करना चाहिए या क्या करना लाजम है इस कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर, इन हालात के अंदर? What must we do in a crisis, a very bad crisis situation? What must we do? हमें क्या करना लाजिम है उन हालात के अंदर जो बहुत बहरान वाले हालात, तबाह बर्बादी वाले हालात, हमें क्या करना लाजिम है? This is the time to build your relationship with God. ये टाइम है, ये वक्त है कि हम खुदा के साथ अपने रिश्ते को, संबंध को बनाएं। This is your time to fix your eyes on God. ये वक्त है कि खुदा के ऊपर अपनी आंखों को लगाएं। This is your time to study and read the word of God every day. ये वक्त है कि हम हर रोज बिला नागा, बगैर मिस किए, हर रोज खुदा के कलाम को पढ़े, सीखे, ध्यान ज्ञान करें उसके ऊपर। Now let's get back to this now. So आते हैं हवाले की तरफ। Ezekiel stands in front of these bones. And then God said to him in verse number 4. अब चौथी आयत के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि लिखे, फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदा का कलाम सुनो। Again he said to me, prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. चौथी आयत हमने पहले ही पढ़ ली कि सूखी हड्डियों से खुदा ने उसको कहा कि तू सूखी हड्डियों पर नबूवत कर और सूखी हड्डियों से कह, सूखी हड्डियों से कह, खुदा का कलाम सुनो। Can you see it there? Hear the word of the Lord. क्या आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं? खुदा के कलाम की बात देख रहे हैं, खुदा का कलाम। Verse 5. Surely saith the Lord God to these bones. Surely, verse number 5. Thus saith the Lord God to these bones. Surely I will cause breath to enter into you and you shall live. Pastor, which verse did you read? 5.
5 5वीं आयत के अंदर खुदा उन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी। इंग्लिश की बाइबल के अंदर श्योरली वर्ड लिखा है, यानी कि इसके अंदर यह कि यकीनन ऐसा ही होगा। So two key words we see here. Number one, the word of the Lord, and number two, surely. अब यहाँ पे दो चीजें हम देख रहे हैं। पहली बात जो देख रहे हैं, खुदा का कलाम, हड्डियों को सुन रही हैं हड्डियां, और दूसरी बात खुदा कह रहे हैं यकीनन ये हड्डियां जिंदा हो जाएंगी। Now look at verse number 6. I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. 6ठी आयत के अंदर हम देख रहे हैं क्या खुदा हम कह रहे हैं, और तुम पर नसें फैलाऊंगा। अब हड्डियों की बात हो रही है, हड्डियों पर नसें फैलाई जाएंगी, गोश्त चढ़ाऊंगा, तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। Okay, number one, we see the word of the Lord. Number two, we see surely. पहली जो चीज हमने देखी, खुदा के कलाम की बात देखी कि हड्डियां को कहा कि खुदावंद का कलाम सुनो, हमने खुदा, और दूसरी बात देखी यकीनन, श्योरली, हमने ये देखा। And number 3, verse number 6, the end part. Then you shall know that I am the Lord. और जो 6ठी आयत के अंदर जो आखिरी हिस्सा हम देखा कि जब वो जिंदा हो जाएंगी तो क्या होगा, यकीनन तुम जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। So this was the word of God to the prophet Ezekiel on exactly what he must say to the bones. अब ये जो चीज है, ये वो कलाम है एग्जैक्टली, बिल्कुल वही जो खुदा ने हिस्कियल को कहा था कि उसने हड्डियों के ऊपर बोलना है, ये वो कलाम एग्जैक्टली है। Amen. And this is the word of the Lord for us today. और ये वो कलाम है जो हमारे लिए कि आज हमने इसको ऐसे ही करना है। Listen to the word of God. Don't listen to conspiracy theories. Listen to God's word. और क्या करना है कि हमने खुदा के कलाम को सुनना है, ना कि ये फर्क किस्म की जो थ्योरीज आ रही है, फर्क की किस्म के राय आ रहे हैं, लोगों के ख्यालात, वो अपने इधर उधर की बातें घड़ के बता रहे हैं, जो मन घड़ी बातें जिनका कोई वजूद नहीं, उनको सुनने के बजाय हमने कलाम को सुनना, खुदा को सुनना है। And secondly, the Lord says, surely you shall live. और दूसरी बात, यकीनन, जब खुदा एक बात कहते हैं, यकीनन खुदा ने कहा है तो ऐसा ही होगा, यकीनन जिएंगे, जिंदा होंगे। हालेलुया। And then you shall know that I am the Lord God Almighty. Amen. Wow. और फिर जानेंगे कि खुदावंद खुदा है। हालेलुया, आमीन। Now listen to me carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। God was speaking to Ezekiel. यहाँ पे आप देखें, खुदा हिस्कियल से बात कर रहे हैं। God was telling and informing Ezekiel what to say. खुदा हिस्कियल को बता रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि उसने क्या बोलना है। As God spoke to Ezekiel, nothing happens. जब खुदा हिस्कियल को बता रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, तो उस वादी के अंदर खुदा हिस्कियल दोनों ही हैं, लेकिन जब खुदा की आवाज निकल रही है उस वक्त उन सूखी हड्डियों के अंदर कुछ नहीं हो रहा, हालांकि आवाज खुदा की निकल रही है, हड्डियों तक आवाज जा रही है। But when Ezekiel spoke exactly what God told him to do, then life came to these bones. लेकिन जो बात खुदा ने हिस्कियल को कहा था कहने के लिए, वही बात जब हिस्कियल ने बोली, जो खुदा ने उसको कहा था कि वो बोले, और जब हिस्कियल ने बोली वो बात, तो कुछ हो गया। You see, God wants you to speak His word. Speak what God tells you to do. Don't speak what other people are saying on the social media. खुदा चाहता है कि आप वो बोले जो खुदा ने आपको बोलने के लिए कहा है, ना कि वो बोले सोशल मीडिया पे जाके जो दुनिया की बातें दुनिया बोल रही है, जो हम इधर उधर की मन घड़त बातें, उनको नहीं, बल्कि हम खुदा के कलाम को बोले, खुदा को बोले। You see, there's so much fear in the world, especially among Christians. Many fear. पूरी दुनिया में इस वक्त खास तौर पे मसीहों के बीच में बहुत ज्यादा डर और खौफ है इस वक्त। They don't listen
and read the word of God. क्योंकि ना तो वो कलाम को सुनते हैं ना पढ़ते हैं, They don't know that surely God will bring life. और उनको ये भी पता नहीं है कि यकीनन खुदा जिंदगी को लेके आया, And know that everybody will know that He is Lord. और सब लोग जानेंगे कि वो ही खुदा है, कादिर मुतलक है, Because we don't speak His precious word, the Bible. We speak all kinds of nonsense out there, but we don't और speak this. वजह क्या है? क्योंकि उनको क्यों नहीं पता, क्यों उनके वो शोर नहीं है, क्योंकि वो और जितनी भी नॉनसेंस चीजें इधर उधर की जिनका कोई वजूद नहीं है, मन घड़ती लोगों की मन घड़ी हुई चीजें हैं, वो तो बोलते हैं लेकिन खुदा के कलाम को नहीं बोलते। Are you with me today? क्या आप मेरे साथ बने हुए हैं? Amen. Amen. Come on, come on, come on, come on. Don't give your ear to all the nonsense out there. Give your ear to the Spirit of God, the Holy Spirit. Put your eyes in the Bible and study the Word of God. अपना कान दुनिया की बातों पे मत धरी, बल्कि अपने कान खुदा के रूह की बात को सुनने के लिए खुले रखे, जो हम रोज यहाँ पे कहते भी हैं कि हम खुदा के रूह की आवाज को सुनने के लिए डिलिजेंट हो जाएं। And speak the Word of God. और आप खुदा के कलाम को बोलें, The Bible says God's promise is yes and amen. क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है खुदा के तमाम वादे हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। God will take care of you. If He can look after the birds, and He can look after the grass, how much more He can look after you? खुदा आपकी हिफाजत करेगा, खुदा आपके देखभाल करेगा, निगरानी करेगा, जैसे खुदा ये बाहर उगी घास और परिंदों चिरिंदों छोटी छोटी चीजों की देखभाल करता है, फिक्र करता है, खुदा उससे कहीं बढ़ के आपकी Don't allow fear to come to you. अपने अंदर डर मत लेके आए। You can only fear the Lord your God. That means respect Him. आप डर को अपने अंदर ना आने दे, बल्कि खुदा के डर को, खुदा के ऑनर, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत ताजीम अपने दिल के अंदर लेके, जब खुदा का डर आएगा तो बाकी सारे डर निकल जाएंगे। Amen. आमीन। Praise God. This is a short message, but I know that it will have an impact on you. Amen. Read this again. Speak God's word. Speak God's word. ये एक छोटा पैगाम आज के लिए था, लेकिन यकीनन ये सबकी जिंदगी पे इसने असर किया है, और आज के बाद आप खुदा के कलाम को बोले, खुदा की बात को बोले, ना कि दुनिया की बातें, अमन घड़त बातें बोले, और ना ही अपने अंदर डर आने दें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे इस कलाम के वसीला से। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आज फिर खुदा ने हमसे बात की। हालेलुया। कि डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। हालेलुया। खुदा की